السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 92,605 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 1133 لوگ فوت بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 54 لاکھ کے پار ہو چکی ہے۔ مانسون سیشن کا پارلیمنٹ کے اجلاس کا آج 7واں دن ہے۔ حکومت نے راجیہ سبھا میں زراعت سے وابستہ قانون کو متعارف کرایا ہے۔ زراعت سے متعلق 2 بل لوک سبھا میں پہلے ہی منظور کر چکے ہیں۔ تاہم بی جے پی کے سب سے قدیم حلیف شیرومنی اکالی دل نے اس بل کی مخالفت میں پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ہرسمرت کور بادل نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ ملک بھر کے کسان اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کانگریس نے حکومت کو کسان مخالف قرار دیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرتاپ سنگھ باجوہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی اس بل کی مخالفت کرتی ہے۔ پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا خیال ہے کہ یہ بل ان کی روحوں پر حملہ ہے۔ ان بلوں پر اتفاق رائے کسانوں کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔ راجیہ سبھا میں زراعت بل پیش کرنے کے بعد مرکزی وزیر تومر نے کہا کہ کسانوں کی زندگی بدل رہی ہے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ مہاراشٹر میں سیکولر جماعتوں کانگریس این سی پی کے ساتھ اقتدار پر قابض ہونے کے باوجود شیو سینا کے پرانے تیور نہیں بدلے ہیں۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن میں قابض شیو سینا اپنے سخت ہندوتوا کے موقف پر نہ صرف قائم ہے بلکہ اس نے فرقہ پرستانہ تیور ظاہر کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ شیو سینا نے اپنے مذہبی ہندوتوا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اسکولوں میں وندے ماترم پڑھنے کو لازمی کرنے کی تجویز بی ایم سی میں پیش کی ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کی تمام اسکولوں سمیت نیم سرکاری اسکولوں میں ہفتے میں 2 مرتبہ قومی نغمے کے طور پر وندے ماترم کو لازمی کرنے کی تجویز اور سفارش میونسپل کارپوریشن کے ایوان میں پیش کی گئی، جس کی سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور کارپوریٹر رئیس شیخ نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے، اس لیے وہ شرکیہ کلمات کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ میونسپل اسکولوں میں مسلم طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد تعلیم حاصل کرتی ہے، ان طلبہ پر جبراً وندے ماترم نہیں تھوپا جا سکتا۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے ایک آزاد صحافی یعنی فری لانس جرنلسٹ راجیو شرما کو ایک چینی خاتون اور نیپالی شہری کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ راجیو پر الزام ہے کہ اس نے چینی خفیہ ایجنسی کو حساس معلومات فراہم کی ہیں، جبکہ چینی خاتون کنگشی اور نیپالی شہری شیر سنگھ پر الزام ہے کہ ان کے ذریعے صحافی کو بڑی رقم فراہم کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چینی انٹیلیجنس ایجنسی نے راجیو شرما کو رقم کے عوض حساس اطلاع مہیا کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسپیشل سیل نے راجیو شرما کو ان کے پیتم پورہ واقع گھر سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ راجیو کے پاس سے کچھ انتہائی خفیہ دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔ راجیو کی گرفتاری کے بعد ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ممبئی شہر میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگائے جانے کی تردید کرتے ہوئے محکمہ پولیس نے سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ان خبروں کو محض ایک افواہ قرار دیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اس بے بنیاد خبر کو سوشل میڈیا یا دوسرے کسی بھی ذریعے سے کسی کو بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ ایسے پیغامات سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ واضح ہے کہ ممبئی میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہونے کے پیش نظر ممبئی پولیس کے ڈی سی پی آپریشن نے 2 روز قبل ممبئی شہر میں سی آر پی سی کی دفعہ 144 کے تحت 30 سپٹمبر تک حکومتی امتناع نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ممبئی شہر میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ لگائے جانے کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی اور شہریوں میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی۔ محکمہ پولیس کی جانب سے اس ضمن میں واضح تردید کر کے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ جے این یو کے سابق لیڈر عمر خالد کی گرفتاری کے خلاف گلبرگہ کی مسلم تنظیموں نے ڈی سی پی آفس کے روبرو احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے فوری طور پر عمر خالد کی رہائی اور ان پر عائد الزامات کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی دہلی فسادات کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا۔ احتجاجیوں نے مرکزی حکومت پر سی اے اے مخالفین کو نشانہ بنانے یو اے پی اے لگانے کا الزام عائد کیا۔ احتجاجیوں نے مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پارلیمنٹ کا جاریہ مانسون سیشن مختصر کیا جا سکتا ہے اور ارکان پارلیمنٹ میں کووڈ-19 پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر آئندہ ہفتے کے اوسط میں اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے ایک اجلاس میں بیشتر سیاسی جماعتوں نے سیشن کو مختصر کرنے کی تائید کی ہے۔ پاکستان نے جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے ہتھیار اور ہندوستانی کرنسی گرائی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے لشکر طیبہ کے 3 عسکریت پسندوں کے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات بتائی، جنہوں نے لائن آف کنٹرول کے قریب یہ ہتھیار اور پیسہ حاصل کیا تھا۔ دلباغ سنگھ نے بتایا کہ جمعے کی شام پولیس اور راشٹریہ رائفلز کے ایک مشترکہ اور مربوط آپریشن کے ذریعے ایک اہم کامیابی حاصل کی گئی، جس سے مرکزی زیر انتظام علاقے میں امن کو درہم برہم کرنے اور تشدد میں اضافہ کرنے کے پاکستان کے ارادے ناکام ہو گئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے سابق مرکزی وزیر دیویندر پرساد یادو کی پارٹی کے ساتھ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے اتحاد تشکیل دیا ہے۔
पटना में देवेंद्र प्रसाद यादव के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उन्होंने मुत्तहिदा जमहूरी सेकुलर मिहाज की बुनियाद डाली है। रियासत में हो रहे असेंबली इंतखाबात में कितनी नशिस्तों पर मुकाबला किया जाएगा, इस बात का जायजा लिया जा रहा है। देवेंद्र प्रसाद यादव समाजवादी जनता दल पार्टी के सरबराह हैं। हिरासत से रिहाई के बाद पहली मर्तबा पार्लियामेंट में खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला ने यह कहते हुए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की कि कशीदगी ख़त्म करने के लिए जब हिंदुस्तान चीन से बातचीत कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर सरहदी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का खास तस्करा किया कि तकरीबन 1 साल के बाद वो लोकसभा में इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कोई पेशरफ नहीं हुई। इस रियासत में इंटरनेट की सहूलतें हुनूस दस्तियाब नहीं है। इसकी वजह से तलबा और ताजरीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अवाम पर पाबंदियां नाफिज है। बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर को भी तरक्की करने का हक हासिल नहीं है। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरहद पर लड़ाई बंदी की मुसलसिल खिलाफ वर्जी हो रही है और लोग मर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला वक्फे सवालात के दौरान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का बार बार मुतालबा कर रहे थे और हुक्मरान जमात के अरकान मुसलसिल एहतजाज कर रहे थे। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई ने कामयाबी हासिल कर ली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आज कोविड-19 की वजह से बदले हुए हालात और मुकाम पर खेले गए आईपीएल 13 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को बआसानी 5 विकेट से शिकस्त दे दी, जबकि अभी 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी थी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसी कोहेन ने कहा है कि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जल्द ही कायम हो जाएंगे। इजरायली टीवी चैनल 12 को इंटरव्यू देते हुए मोसाद के चीफ ने कहा कि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जल्द ही कायम हो जाएंगे। इनका सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसी के चीफ वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीबी दोस्त समझे जाते हैं। वो खलीजी रियासतों में इजराइल के खुफिया सिफारतकार के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा को अमेरिका के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा है। अल शर्क़ अल औसत के मुताबिक अमेरिकी सदर ने यह तमगा व्हाइट हाउस में खुसूसी तकरीब के दौरान शेख नासिर सबा अल जाबेर अल सबा के हवाले किया। अमेरिका ने खित्ते समेत दुनिया भर में अमीर कुवैत के अजीम किरदार और अनथक जद्दोजहद एतराफ़ में ये तगमा दिया है। इजरायली और इमारत के दरमियान होने वाले इब्राहिम मुआहदे पर क़तर की जानिब से शदीद तनकीद के बावजूद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के हुक्काम ने कहा है कि बिलाखिर क़तर इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर ले आएगा। ताहम इस बारे में कोई वक्त नहीं दिया जा सकता। मीडिया के मुताबिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग में डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अरब गल्फ अफेयर्स निमोथी लैंडर किंग ने याद दिलाया कि क़तर वो पहला खलीजी मुल्क था जिसने अपने दारुल हुकूमत दोहा में इजराइल को दफ्तर खोलने की इजाज़त दी थी। लैंडर किंग ने मजीद कहा कि क़तर तुर्की से ज़्यादा मुस्बित किरदार अदा कर रहा है, जिसने अवामी सतह पर मामूल की तरफ बढ़ते सिलसिले की मजम्मत की है। जबकि क़तरी हुकाम ने हालिया दिनों में कहा है कि वो जब तक इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाएंगे जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं हो जाता। तेलंगाना में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम से मरकजी वजीर पीयूष गोयल मुतमईन हैं। बस्ती दवाखाने में कोरोना टेस्ट कराने की सताइश की। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कोरोना की रोकथाम का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें 12 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ रियासतों में किए जा रहे इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तेलंगाना में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकारी सतह पर किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ करवाया। काबीनी सेक्रेटरी ने रियासती हुकूमत के इक़दाम की सताइश की। कोरोना से हो रहे अमवात की शरह कौमी शरह से कम होने पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा 382 शहीद डॉक्टरों की फहरिस्त के मुताबिक तेलंगाना में कोविड-19 के बाद कम से कम 10 डॉक्टर्स फौत हुए हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए इन डॉक्टरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तेलंगाना में जिन डॉक्टरों की जान चली गई इनमें निज़ामाबाद आरमोर के डॉक्टर नलिनीकांत, वरंगल के डॉक्टर भूमा रेड्डी, डॉक्टर जी श्रीनिवास और डॉक्टर अयूब खान, सिद्दीपेट के डॉक्टर शंकर राव, विकाराबाद के डॉक्टर बी राघवेंद्र राव, सरसला के डॉक्टर पल्ली वित्थल और हैदराबाद में डॉक्टर हरि कुमार, डॉक्टर ज्ञानेश्वर राव और डॉक्टर के.वी. प्रसाद शामिल हैं। पार्लियामेंट में पेश करदा डाटा के मुताबिक तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 3 डॉक्टरों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बराए कोविड का मुकाबला करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए मरकज से सिर्फ 50 लाख रुपए इंश्योरेंस मौसूल हुए हैं। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान 5 कंपनियों ने सरमायाकारी की है। बेंगलुरु अगरचे स्टार्टअप की दौड़ में आगे हैं, लेकिन फंड्स के मुआहदों की तादाद की जब बात आती है तो हैदराबाद ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। बेंगलुरु के स्टार्टअप्स के पास 2020 में $2,436 मिलियन की सरमायाकारी की गई। ग्लोबल स्टार्टअप एक्यू सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मोतियों के शहर हैदराबाद को टॉप 100 में उभरते हुए इकोसिस्टम्स में 71 से 80 के दरमियान रैंक हासिल हुआ है।
शहर में इख्तिराई इक़दामात की वजह से हैदराबाद को स्टार्टअप का हब माना जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करते हुए अवाम को वार्निंग दी है कि हैदराबाद में आइंदा 3 दिन के लिए शदीद बारिश का इम्कान है। हफ्ते को शहर के कई हिस्सों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर 3 बजे तक शहर के आसमान पर घने बादल देखे गए। शहर के कई इलाकों में दोपहर को शदीद बारिश हुई। शहरी अपने घरों से निकलने से खातिर रहे। जीएचएमसी ने अवाम को मशवरा दिया कि वो घरों में रहें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। जीएचएमसी ने अवाम से कहा कि वो हंगामी खिदमात के लिए 100 नंबर डायल करें और मदद तलब कर सकते हैं। कांग्रेस के कायदे मुकन्ना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने टीआरएस हुकूमत पर डबल बेडरूम मकानात के मामले में ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। इंदिरा भवन में पार्टी कायदीन के साथ इजलास तलब करते हुए कहा कि हर इंतखाबात से कबल अवाम को धोखा देना चीफ मिनिस्टर केसीआर की आदत बन गई है। रियासती वजीर बल्दी नज़्ज़ोनस केटीआर की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का ऐलान किया जा रहा है। हमने असेंबली में दिखाने का हुकूमत को चैलेंज किया, जिसको कबूल करते हुए रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सिर्फ 3432 डबल बेडरूम मकानात दिखाए। कांग्रेस पार्टी की शोला बयान लीडर विजय शांति ने जीएचएमसी हुदूद में ड्रेनेज में गिरकर 12 साला लड़की की मौत के सानहे पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि आखिर आपने गुज़िश्ता 6 साल हुक्मरानी के दौरान हैदराबाद की तरक्की के लिए क्या किया है। अवाम को दरपेश मसाइल जूं के तूं हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद लोग बहकर मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। दोनों शहरों में नालों और मेनहोलों में गिरकर मरने वालों की तादाद मालूम की जाए तो ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकता है। केसीआर माजी में आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों पर तनकीद करते थे, अब उन्होंने तेलंगाना को हासिल कर लिया है, लेकिन तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। ऐलानात तो बहुत किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने हैदराबाद को आलमी शहरों का दर्जा देने का वादा किया था। तेलंगाना रियासत के गरीब व मुतवस्सित तबकात पर दिन ब दिन माली बोझ में इजाफा हो रहा है। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन से कई लोग रोजगार से महरूम हो गए हैं। इसके बाद तलबा की ऑनलाइन तालीम ने इन माहाना अखराजात में मजीद इजाफा कर दिया है। बच्चों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप्स खरीदना, इंटरनेट की सहूलतों से इस्तेफादा करना, वर्क फ्रॉम होम के मामले में कई दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम का आगाज़ किया है। बच्चों की जानिब से वालिदैन पर स्मार्टफोन के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुआशी मसाइल ने बावजूद वालिदैन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कर्ज हासिल करते हुए स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। महकमा तालीमात के आदाद शुमार से पता चलता है कि 1 सितंबर से 1,91,768 तलबा स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स के जरिए ऑनलाइन तालीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ऑनलाइन तालीम से इस्तेफादा करने वाले तलबा की तादाद 2,19,225 तक पहुँच गई है, यानी 27,517 तलबा का इस फहरिस्त में इजाफा हुआ है। इससे अंदाज़ा होता है कि स्मार्टफोन्स की खरीदी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है।